Hello everyone. Today we have Dr. Vineet with us who has cleared his FMG exam in July 2025 attempt. We're very proud of you, Doc. It has been a long journey for you. Congratulations. How are you feeling right now? The feeling is unreal. Thank you so much, first of all. Actually, this was my sixth attempt, and from past five attempts, I was feeling so much depressed. This attempt, I was so much confident that I'm gonna make through this, and the results are out, and I'm passed this exam. Congratulations, congratulations. So how was the result day, Thank Doc? you. How was the मतलब result day कैसा था? जैसे I'm sure you must have been checking all the groups and all those fake news कि result आ गया, result आ गया. तो tell me Actually, exactly 1 week कैसा गया? Hmm. after exam, actually कैसा था कि सब लोग कॉन्शियस थे कि भाई रिजल्ट कब आएगा फ्रॉम 1 वीक आफ्टर वन वीक एग्जाम की रिजल्ट आ जाएगा मोस्टली मंडेज को आता है मोस्टली फ्राइडेज को आता है देन ऑल हैव दैट टाइम स्लॉट आल्सो in between 6:30 to 8:30 results are out if in the morning it's between 11:30 to 1 p.m. So each day every day someone was mentioning that today is going to be result, the time is up. सो हर दिन वो एक फियर था कि आज रिजल्ट आएगा तो कॉन्स्टेंटली फोन चेकिंग एंड ऑल इफ आई एम इन द मूवी थिएटर देन आल्सो आई एम चेकिंग माय मोबाइल एंड ऑल सो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन actually what happened the message popped up that result are out. So I sat with my tablet, I Hmm. checked, I opened the PDF and suddenly light was on. I said हो गया भाई लाइट चला गया सब that all stuff superstitious stuff. So I was afraid, but I gather all my strength and all my. So मैंने देखा PDF open किया. I क्या आप checked. नीचे गए ऐसे या अपना नंबर टाइप No, no, किया? no. उसके पीछे भी एक था मीन्स एक एक नंबर जब रूल नंबर मैं टाइप कर रहा था आई वाज टेकिंग माय ऑलमाइटीज नेम. एक नंबर टाइप किया तो नंबर नाम ले रहा था सेकंड ऐसे ऐसे कंटिन्यू मैं कर रहा था. लास्ट डिजिट के टाइम थोड़ा सा पॉज किया देन एंटर किया. रिजल्ट आई सॉ 160. आई चेक थ्राइस. आई कॉल माय पेरेंट्स एंड सडनली लाइट केम. सो they were happy. I was in all tears. My father was in tears. My mother was also in tears. So it was good. Finally, it is done. Yes. So I want to ask you that आपने जैसे कहा कि this was your sixth attempt. That is a long time. तो कैसे अपने आप को मतलब how did you get the strength to keep going on even though it's been a while? मोस्टली पेरेंट्स का सपोर्ट मैटर्स द अलॉट. सो उन्होंने उनके साइड से पूरा सपोर्ट किया. फादर फाइनेंशियली सपोर्ट सपोर्ट कर रहे थे. मदर मदर तो ऑलवेज सपोर्ट करती है. सो आई हैव वन सिबलिंग माय यंगर ब्रदर ही आल्सो सपोर्टेड मी अलॉट. देन फ्रेंड्स का जो रोल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स सो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है. डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस दे ऑल गोना हिट एट एनी टाइम एनीवेयर. सो उससे ओवरकम करने के लिए भी आई टुक गॉड्स नेम ऑलवेज. went to Hmm. temples and all for stress relief. Then in the initial attempts, in first second attempts, I dropped my workout. I didn't work out. I love to work out, but जो Hmm. willingly जो exercise मैं कर रहा था वो नहीं कर रहा था. Then in last two attempts, I started it all. So उस चीज से मुझे physical the stability रहा तो mental stability भी रहता था. So it helped me a lot. So what was the strategy? What changed in the sixth attempt? And what mistakes have In you made in your previous ones? In my very first attempt, I remember my date was postponed. It was in December 2022. Hmm. The date got shipped on January 20. So मैं दिल्ली में था उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो कंफर्ट जोन से मैं आई केम बैक टू माय होम. सो वो कंफर्ट जोन में मैं आ गया और आई टोटली मेस्ड अप. मैं ना मैंने PYQs किए उस टाइम. मोस्टली क्वेश्चंस वाज PYQs. सो मैंने PYQs भी नहीं किए थे. आई ड्रॉप दैट. Then in second attempt, no revision. Only I did only questions. Someone told me that focus on questions, solve questions. No need to revise all. Cause you're gonna score. Means you have done all this much. So just do focus on questions. Then I did that. Same. I got 114 in that time.
then just left for 1 marks. Then in my third attempt, same, but this time I did revision. Means I focused on revision and less focused on question solving. So उधर भी मैंने mess कर दिया. Then that was a blunder. So this happened, and source changing. That is the biggest mistake someone can that do. you made? वो change नहीं करना चाहिए. Then in this attempt, uh, I I sat down and I gathered all my attempts, the results, analyzed them. Then GTs भी मैं solve नहीं करता था. That was one of the biggest mistake. क्योंकि Mhm. self analysis is the key to pass this exam. अगर Mhm. self analysis है ही नहीं तो फिर पास नहीं हो पाएगा. Definitely, definitely. Yes. लास्ट डेज में मैंने आरआईएस का क्यूआरपी सेशन थरोली किया, रिलीजियसली मैंने उस चीज को फॉलो किया. मैं बैठा ऑलमोस्ट दो थ्रू आउट द डे. मैं बैठा, वो लेक्चर्स लाइव किए मैंने. जो लेक्चर लाइव मिस हुए उनको मैंने रिकॉर्डेड फिर से देखा. Mhm. 2x स्पीड पे, 1.5 पे मैंने सब देखा, सब फॉलो किया अच्छे से. एंड जीटीज ऑफ आरआईएस आर दी बेस्ट. मैं Mhm. बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनका मैं कुछ पता बोलूंगा नहीं, पर आरआईएस के जीटीज felt like exam ones. And Hmm. one of my friend who gave in January, he also told me that you need to give those three GTs. Those three GTs will boost your confidence, and it will. The questions they frame are exactly the ones which are coming in exams. So मैंने वो सब किए अच्छे से. GTs में मेरा स्कोर 180, दो GTs में 180 आया, और लास्ट वाले GTs में आई गेस 205 या समथिंग कुछ तो आया था. सो Hmm. कॉन्फिडेंस तो था. So, हो गया था अच्छे से. क्यूआरपी कैसा लगा आपको? कौन सी फैकल्टी पसंद आई? नदीम सर, हम्म, देन प्रियांश जैन सर, एंड एनाटॉमी सर का मैं नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी. ठीक है सर। उनका जो उन्होंने जो एनाटॉमी लिया था, दैट वाज बेस्ट. शॉर्ट में, कंसाइज में, अच्छे से सब हुआ. देन सर्जरी वाज बेस्ट. सर्जरी, आई आई पर्सनली फेल्ट कि सर्जरी ने मुझे बचाया है इस बार, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आई थॉट गया बिलो हम्म, बिलो 80 आएगा मेरा स्कोर. मेरा टारगेट था कि अबाउट 95 90 मुझे स्कोर करना है फर्स्ट पेपर में, कि सेकंड पेपर में उस चीज को कवर कर सकूं. बट नहीं हुआ वो. मुझे लगा फिर सेकंड पेपर में मैंने देखा सर्जरी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्यूआरपी सेशन. दैट हम्म, सूचर वाला एक क्वेश्चन था. बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे सूचर वाला भी याद है फिलहाल में. देन मेडिसिन प्रियांजन सर. देन पीडिया भी अच्छा था. सो ओवरऑल क्यूआरपी इज बेस्ट फॉर क्विक रिविजन. और मुझे ये बताइए कि आप अपने जूनियर्स को जो जैन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, क्या-क्या एडवाइसेस देना चाहोगे उन्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर रैपिड रिवीजन इज नॉट इनफ फॉर दिस एग्जाम. हाँ, किसी का कम लक करने चल के जाए लिए। तो वो बोल नहीं सकते, बट आर इज नॉट डन. सो वो नहीं करना चाहिए. बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि जो डायग्राम्स, जो क्वेश्चंस में फ्रेम हो रहा है डायग्राम्स, वो हैंडमेड डायग्राम्स है कुछ कुछ. तो वो हुँ, हमको होना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए. देन स्टिक टू वन सोर्स. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टिक टू वन सोर्स. एंड रैंडम वीडियोस नहीं देखना चाहिए. मैंने गलतियां की है. मैंने रैंडम वीडियोस देखे हैं बहुत सारे एग्जाम के पहले, जो पॉपअप होते हैं यूट्यूब पे हमेशा. सो वो हुँ। उस चीज तो को चमक है, इग्नोर करना चाहिए. वो लिटरली चमक है। यस. Old is what you एंड are using again and again. yeah, same. Then GTs, I did 10 GTs. I gave 10 GTs. स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 140 130 स्टार्टिंग के 3 4 जीटीज में था, बट मैंने जैसे रिवीजन अच्छे से किया तो स्कोर अच्छा बढ़ गया मेरा. एक और चीज़ मुझे पूछना है, उन दिन जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते थे या डिमोटिवेटेड हो जाते थे या इनसिक्योर हो जाते थे या सेल्फ डाउट क्रीप इन करने लगता था, तो उस दिन आपने हम्म. ऐसी क्या चीज़ें की जो आपको लाइक हेल्प करी है? या व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू दैट टाइम? एट दैट टाइम आई थिंक एक ब्रेक लेना चाहिए. नॉट होल डे ब्रेक, बट एटलीस्ट हाफ डे का ब्रेक तो होना चाहिए. पूरा ज्यादा टाइम ब्रेक नहीं लेना चाहिए. हाफ डे का ब्रेक होना चाहिए. डू वॉट एवर यू फील इज गुड फॉर यू. मीन्स सम सब्जेक्ट्स आर सो वोलेटाइल. मीन्स फटीग भी होता है सब कुछ सब्जेक्ट में. फॉर एग्जांपल पीएसएम में फटीग हो जाता है, कुछ समझता नहीं है, एंड द हुँ, क्वेश्चंस आर अनप्रेडिक्टेबल. एग्जाम में को पीएसएम के क्वेश्चंस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. हुँ, सो ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट्स जो आपको पसंद है, वो उस पे फोकस किए, उसको स्ट्रेंथन अप किया मैंने मेरे जो वीक डेज थे. एंड वर्किंग आउट वर्कआउट हेल्प मी अलॉट.
तो मैं स्टेबल हुँ। फ़ोकस रहता था उस टाइम, तो दैट वाज़ माय बेस्ट। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है मतलब जो बच्चे अवॉइड कर लेते हैं दे स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड गेन वेट एंड देन या, कम या। सेडेंटरी बिल्कुल बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे यू हैव टू सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ना पर आई थिंक वर्कआउट व्हाट यू हैव सेड कि वर्कआउट बहुत चेंज लाता है लाइफ में यू शुड बी एबल टू वर्कआउट एंड अमेजिंग अमेजिंग कांग्रेचुलेशंस डॉक बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू वन लाइन अबाउट एफएमजी One should not take FMG for granted because it is your career making exam. So कभी भी मैंने तो फील किया है फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए एफएमजी को, एटलीस्ट एफएमजी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिस गोना चेंज योर एंटायर लाइफ। And what I feel is कि आप बहुत positive हो. Even after, giving the attempts again and again, you still have that यस मैम। beautiful smile on. And कैसे लग रहा है अब? मतलब सब पूरा मतलब लाइट फील कर रहे होंगे आप भैया। मैम, सारे जो अटेम्प्ट थे वो रिवाइंड हुए थे मेरे माइंड में, फ्लैशबैक टाइप सब ऐसा रिवाइंड हो चुका था। मैं बहुत रिलैक्स फील था, मैंने मेरा बॉडी फुल ऐसा रिलीज हो गया था, मैंने ड्रॉप कर दिया था मेरा रिजल्ट के। रिजल्ट जब मैं देखने वाला था मेरा पूरा बॉडी शिवर कर रहा था, मैं ड्रॉप था। रिजल्ट के बाद तो मैं बहुत हैप्पी था। एंड चलो। थैंक्स टू यू मैम, मैंने आपके पीवाईक्यूज के सेशंस भी पहले देखे हैं, वो भी मुझे हेल्प किए थे एक पॉइंट पे। तो थैंक यू टू, थैंक यू सो नो, मच। नो, नो, थैंक यू। इट मैटर्स अ लॉट कि जो हम करते हैं फाइनली बच्चे देखते हैं दे दे मूव ऑन इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग कि वी सी यू एज एन एस्पिरेंट और आज आप एक डॉक्टर हो लाइसेंस डॉक्टर कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर